3, text 29. So we are हरे studying कृष्णा the माता जी। chapter. What happened? माता जी वो नंबर मतलब 88 वाला करना है या 7 वाला, या फिर नया 7 है जो, वाला, मतलब मेरे पास नहीं है। 7 वाला. 7 वाला ना, ओके, जो श्रावण से स्टार्ट हो रहा है, ओके। Uh, we are studying chapter 3, that is Krishna is the source of all incarnations. We have already studied various incarnation. Now I will be diving deep into the Bhagavatam further. Janma Guyam Bhagavato Ya Itat Prayato Naraha Sayam Pratar Grinan Bhaktya Dukha Gramad Vimuchyate. Janma Guyam Bhagavato Ya Itat Prayato Naraha Sayam Pratar Grinan Bhaktya Dukha Gramad Vimuchyate. जन्मगूयं भागवतो या इतत्प्रायतो नरः स्वयं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखाग्रामत् विमुच्यते. Akshay Prabhu, read the shloka. जन्मगुह्यं भागवतो य इतत्प्रायतो नरः स्वयं प्रतर्गृण भक्त्या दुःखग्रमद् विमुच्यते. Next Mataji's, Puja Mataji, आप पढ़ो. जन्म गुह्यं भागवतो य इतत्प्रायतो नरः संयं प्रातर्गृह्णन् भक्त्या दुःखाग्रमद् विमुच्यते. Asta, read the shloka. माता जी प्रिय माता जी कॉल नहीं उठाते। कोई बात नहीं, जन्म रहना. गुह्यं भागवतो या एतत् प्रयतो नारः स्वयं प्रताग्रहान् भक्त्या दुःखाग्रमाद् विमोच्यते। Okay. Word to word meaning. Janma, birth, Guhyam, mysterious, Bhagavataha, of the Lord, Yah, one, Itat, all these, Prayata, carefully, Narha, man, Sayam, evening, Prataha, morning, Gnan, recites, Bhaktaya, with devotion, Dukhagramat, from all miseries, Vimuchyat, gets relief from. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. So now what's said here, whoever carefully recites the mysterious appearances of the Lord with devotion in the morning and in the evening gets relief from all miseries of life. Jai. So we all want relief from miseries of life. So already we are reciting these mysterious appearances of the Lord. But it should be with devotion in the morning and in the evening. One morning में तो हम पढ़ रहे, evening we are studying Bhagavad Gita. So this is actually relieving us from all the miseries of life. Just simply reciting the mysterious appearances of the Lord. So in the purport, Prabhupada is saying, so very nice, huh? We are actually relieving our miseries. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead has declared that anyone who knows the principles of transcendental birth and activities of the Lord will go back to Godhead after being relieved from this material tabernacle. What he says in the Bhagavad Gita, the personality of Godhead has declared that anyone who knows the principle of transcendental birth and activities of the Lord, क्या बोला, जन्म कर्म चामे देव्यम 4.13, Krishna says, anyone who knows about my transcendental appearance and disappearance will not take birth again in the material world. It says we'll go back to Godhead after being relieved from this material tabernacle. Tabernacle क्या होता है? It's like a moving thing. ठीक है, tabernacle it's in the term in the Christianity or in the Bible. Uh, एग्जैक्ट तो नहीं मुझे याद है. टेबरनेकल होता है मूविंग टेम्पल ऑल्सो, उसको भी टेबरनेकल कहा जाता है. सो मतलब कुछ भी चीज है जो मूवेबल हो. ठीक है. So like this body is a movable, like you can go from one place to another. So that's what is mean tabernacle. So this material tabernacle, so being relieved from this material tabernacle means we are again into the birth cycle, birth death old age के cycle में, that's like a tabernacle one sense. So we can get relief from this tabernacle, material tabernacle. Okay. So simply knowing effectually and the mysterious way of the Lord's incarnation in this material world can liberate one from material bondage. कि सिर्फ भगवान के इस दिव्य incarnations के बारे में जान के हम इस भौतिक जगत से मुक्त हो सकते हैं कर्म बंधनों से. Therefore, the birth and activities of the Lord as manifested by Him for the welfare of the people in general are not ordinary. तो इसलिए भगवान का जो जैसे आते हैं, डिसेंड होते हैं, ठीक है, जन्म तो नहीं कहा जाता है, बिकॉज जो जन्मता है वो मरता भी है, तो भगवान का जन्म नहीं होता है.
अंडरस्टैंडिंग। जन्म होगा तो उनके कोई माता पिता भी होंगे, मगर भगवान के कोई माता पिता नहीं है, ही स्वयं इज अ सुप्रीम फादर, ठीक है। सो ही डिसेंड्स, बर्थ टर्म इसलिए यूज किया जाता है फॉर अस टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली, बट अदरवाइज इट्स नॉट द बर्थ, इट डिसेंड्स। डिसेंड्स मीन्स आना, अवतरित होना, ठीक है। सो उनका यहाँ पे आना और जाना इज नॉट एन लाइक सिंपल थिंग, ही कम्स फॉर अ पर्पस, ठीक है। भगवान एक पर्पस के लिए आते हैं। व्हाट वाज द पर्पस? टू दैट टू एस्टैब्लिश द धर्म, to establish the law and order, and first of all for his protection of his devotees, and like the killing of the demons, you know. So this is not an ordinary act, that when the Lord descends and comes, there is some function, okay. It's not in something ordinary. They are mysterious, and only by those who carefully try to go deep into the matter by spiritual devotion is the mystery discovered. तो हम जितना ज़्यादा इसको जानने का प्रयास करेंगे, the mystery और ज़्यादा पता चलेगी। जैसे मैं बता रही हूँ कि मुझे साइंस पढ़ने का बहुत शौक था स्टार्टिंग से ही। So जैसे planets and all, I wanted to know more about these galaxies, Milky Ways and all. मगर कभी भी अपनी भौतिक साइंस की किताबों में इतना कुछ डिटेल मिला नहीं। मगर जैसे ये मैंने फर्स्ट कैंटो पढ़ा था भागवतम का, क्रिएशन के बारे में, I was totally amazed. Wow. It was like so amazing. Like the mystery is discovering for me that how the planets are there, how many planetary systems, how the universes are. So this is like a mystery is discovering for me. Like the more you are studying, and it's only the Shastra can relieve. So this is how the mystery discovered. And one can be into the amazement. Wow. It's like that. So does one get liberation from material bondage? It is advised, therefore, that one who simply recite this chapter of Bhagavatam, describing the appearance of the Lord in different incarnation, in sincerity and devotion, can have insight into the birth and activities of the Lord. So, जो भी इस स्पेशली इस चैप्टर को, Asta, you want to say something? No, Mataji, by mistake it happened. So it said that especially ये chapter है जिसमें बताया कि भगवान Krishna is the source of all incarnation. If one recites or hear with full sincerity and devotion, can actually have the insight of Krishna's birth and the activities of the Lord. ठीक है? The very word vimukti or liberation indicates that the Lord's birth and activities are all transcendental. तो भगवान के जन्म या एक्टिविटीज जो कार्य हैं वो सारे दिव्य हैं. Otherwise, simply by reciting them, one could not attain liberation. आप किसी भौतिकवादी के जन्म के बारे में बात कर लो या उनकी गतिविधियों के बारे में बात करो, कितना आनंद आएगा. नॉट दैट मच. अब देखो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जब एक्टिविटीज देखते हैं, वी रिजॉयस, इजंट इट? बिकॉज कभी वो तोतला बोलते हैं, कभी कुछ एक्टिविटीज करते हैं, वी जस्ट रिजॉयस, इट जस्ट गिव अ प्लेजर टू अस, इजंट इट? वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, कुछ हरकतें करते, गुस्सा आता है कि नहीं आता? सो मतलब वो दिव्यता नहीं रहती, क्योंकि उसमें दिव्य नहीं है तो आनंद नहीं ले पाते हम, ठीक है. वो टेम्परेरी तौर के लिए रहते हैं. मगर जो भगवान की एक्टिविटीज है, आइदर इट्स इन एडल्टहुड, चाहे वो उनके बड़े रूप में है, चाहे वो बचपन के काल के हैं, they all gives lots of pleasure to the heart. Even people, devotees, rejoice in talking about them again and again. जैसे भगवान का दामोदर लीला मेरा one of the favorite है. So और एक और जो ब्रह्म विमोचन लीला भी, and the prayers of ब्रह्मा जी and इंद्रा. So मतलब भगवान की वो लीलाएं हैं, उनके childhood past and as being in cowherd and all. So they are like again and again you read them, recite them, discuss them. एक अलग सा स्माइल होगा चेहरे पे. Understand? Because they give pleasure, because they are दिव्य. दिव्य ना. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, अब हरे कृष्णा महामंत्र है. हम हर दिन उसका जाप करते हैं, है ना. कुछ 8 कर रहे हैं, कुछ 2 कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 16 कर रहे हैं, 64, जितना भी माला आप कर रहे हो. मगर रोज महामंत्र तो एक ही जप कर रहे हो ना. अलग से तो नहीं हर दिन के लिए अलग मंत्र है कोई, चलो आज ये नहीं, आज ये वाला मंत्र गा लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना. अब जैसे भौतिक जगत के गाने हैं, ठीक है, आपको कोई एक गाना पसंद होगा, मगर उस गाने को आप कितनी देर तक गा पाओगे? क्या उस गाने को आप 1728 बार रिपीट कर सकते हैं? आपको पता है हम लोग 16 माला में है, 1728 बार हरे कृष्णा महामंत्र को रिपीट करते हैं. 108 है ना, 108 इंटू 16 करो तो इट कम्स लाइक दैट काउंट, यू नो. तो उसको हम इतनी बार रिपीट करते हैं. अब एक गाने को इतनी बार रिपीट करो, क्यों? क्योंकि वो दिव्य नहीं है. भौतिक जगत का है ना, इतना आनंद नहीं देता. मगर जो दिव्य होता है उसको जितनी बार भी उसकी चर्चा करो, गाओ, बोलो, उतना ही आनंद उसका आता रहेगा. सो दिस इज द दिव्यता of Krishna's coming, his activities, pastime. They give rejoice to the heart. Then it says, they are therefore mysterious, and those who do not follow the prescribed regulations of devotional service are not entitled to enter into the mystery of his birth and activities. ये कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी.
आई थिंक इन भगवद गीता ऑल्सो वी स्टडीड, या इन भगवद गीता भी हम लोगों ने पढ़ा था कि टू नो कृष्णा दैट इज द गोल, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कृष्णा अंटिल वी आर एंगेज इन डिवोशनल सर्विस। तो जब तक हम डिवोशनल सर्विस में नहीं लगेंगे हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो उस तरह से यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। रेगुलेशंस मतलब because we are Kali Yuga Jiva, so we are not that pure. So for us there are certain regulations are given. ठीक है, जैसे 4 नियम हम पालन करते हैं, फिर भक्ति में जब करते हैं, भोग लगाते हैं, so certain thing we are following up. So by following all those things, then we can understand the mysteries of Lord's appearance and disappearance, and and his activities we can understand, and we can know something about Krishna only by devotional service. So this is the only means. Okay, and related to Krishna everything is divya, transcendental. भगवान दिव्य हैं, उनकी एक्टिविटीज भी दिव्य हैं, उनके पैराफिनाले सब कुछ दिव्य है, नाम रूप फेम एवरीथिंग इज दिव्य, ट्रांसेंडेंटल, भौतिक जगत का नहीं है। ठीक है, so we'll move to the next shloka. So this is the importance of reciting about these all incarnations. So this chapter is now worthwhile, huh? कि पढ़ा तो थोड़ा मुक्ति आएगा, like you will be getting free from all the miseries. So we can try to understand. So try and hear the Bhagavatam with full faith and conviction. Faith और sincerity से सुनेंगे, devotion से, तो लाभ मिलेगा। नहीं सुनोगे, mechanical रहेगा, तो इतना लाभ नहीं मिलेगा। So you all wanted to have some progress on spiritual path. So listen very carefully with full attention and devotion. Okay, we'll move to the next shloka. इतत् रूपं भागवतो हि अरूपस्य चित् आत्मना मया गुणैर्विराजितं महदादिभिरात्मनि. The conception of Virat, universal form of the Lord, as appearing in the material world is imaginary. It is to enable the less intelligent and neophytes to adjust to the idea of the Lord's having form. But factually the Lord has no material form. अब देखा जाए जो भगवान का यूनिवर्सल या विराट रूप है, जो हम लोग भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी पढ़ेंगे, तो वो एक्चुअली इमेजिनरी काइंड ऑफ है, या आप कह सकते हैं इट इज मटेरियल, वो स्पिरिचुअल नहीं है। भगवान के जितने भी रूप हैं वो सारे स्पिरिचुअल हैं और स्पिरिचुअल वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, मगर ये जो विराट रूप है ये मटेरियल है। मटेरियल कहा जाता है कि भगवान के जो बोन्स हैं, they are the mountains, the hairs on the Lord's body are the trees and the herbs, and the veins of the Lord are the rivers. So like that one is imagining the form, you know. So ये उन बुद्धिहीन व्यक्तियों के लिए बताया जाता है कि वो एक्चुअली समझ पाए कि भगवान का कुछ रूप है, फॉर्म है, कि वो निरंकार नहीं है। उस सेंस में बताया जाता है कि द मटेरियल रूपा इज टॉक्ड अबाउट, बट भगवान का जो शरीर है वो मटेरियल नहीं होता, निर्गुण है। निर्गुण मीन्स गुणों से परे है। निर्गुण का मतलब ये नहीं कि गुण ही नहीं है या आकार नहीं है। निर्गुण का मतलब है कि रूप है मगर भौतिक नहीं है। ठीक है, इट्स नॉट मटेरियल, इट इज spiritual. So that what is Lord's form is, it's not material. Okay, so we'll read the purport. The conception of the Lord, known as the Vishwarupa or the Virat Roop, is particularly not mentioned along with the various incarnations of the Lord, because all the incarnations of the Lord mentioned above are transcendental, and there is not a tinge of materialism in their bodies. क्या बोला है? The conception of the Lord, known as Vishwarup or Virat Roop, is particularly not mentioned along the various incarnation. देखो इसीलिए तो विराट रूप को incarnations में count नहीं किया ना, क्योंकि भगवान के जितने भी incarnation they are all दिव्य। ठीक है, so मगर ये जो incarnation को नहीं बोला गया है, because all the incarnation of Lord mentioned above are transcendental and there is not a tinge of materialism in their body. मगर जो विराट रूप है ये material है। ठीक है, there is no difference between the body and the self as there in the conditioned soul. अब हमारे में, हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है ना, मगर भगवान के शरीर और आत्मा में बिल्कुल अंतर नहीं है। उनका हमारी तरह स्थूल शरीर नहीं होता। स्थूल मीन्स पंचभूतों से बना हुआ। नो, he didn't have the material body. His body is, and the self is transcendental. It's a one. The Virat Roop is conceived for those who are just neophyte worshippers. For them, the material Virat Roop is presented, and it will be explained in the second canto. इसके बारे में ज़्यादा डिटेल second canto में आएगी, या भगवद गीता के 11वें अध्याय में भी मिलेगी। So in the Virat Roop, the material manifestations of different planets have been conceived as his legs, hands, etc. जैसे मैंने बोला different planet है, उनके हाथ या टांगे ऐसे बताया जाता है। Actually all such descriptions are for neophytes. ठीक है, जो बिल्कुल नए नए हैं, जिनको पता नहीं है कि भगवान का रूप भी हो सकता है, ये सब चीजें उनको बताई जाती हैं। The neophyte cannot conceive of anything beyond matter.
क्योंकि जो नया नया है वो मैटर के अलावा वो कुछ जान नहीं पाते कि कुछ दिव्य भी हो सकता है, तो इसलिए उसको उसी सेंस में समझाया जाता है. The material conception of the Lord is not counted in the list of his factual forms. As Paramatma or Supersoul, the Lord is within each and every material form, even within the atoms. But the outward material form is but an imagination, both for the Lord and for the living being. The present forms of the conditioned souls are also not factual. The conclusion is that the material conception of the body of the Lord as Virata is imaginary. जो विराट रूप है कि भगवान का भौतिक शरीर वो इमेजिनरी एक काइंड का, आप उसको परसीव भी नहीं कर सकते. हजार हाथ हैं, हजार मुख हैं, पता नहीं कितने, we can't even imagine, you know. Both the Lord and the living being are living spirits and have original spiritual bodies. So actual में भगवान और हम हमारा spiritual रूप है, spiritual body है. But the thing is because now we are conditioned under the modes, इसलिए हम लोगों ने ये देह धारण कर रखा है जो material है, ठीक है. But actual में what we are the spiritual beings. Abhi to we are under the illusion, we are under this condition of the material body, but we are the spiritual being, and to revive that thing, we have to practice the spirituality. Okay, so we'll moving to the next shloka. Anyone coming any doubt in middle, they can ask. Okay. यथा नाभासि मेघगो रेणुर्वा प्रतिभो निले इवं दृष्टारि दृश्यत्वम् आरोपितम् अबुद्धिभिः. Clouds and dust are carried by the air, but less intelligent persons say that the sky is cloudy and the air is dirty. Similarly, they also implant material bodily conception on the spirit self. क्या बोला है? जैसे बादल हैं या dust है, are carried by the air. अब जो हवा है वो बादलों और dust को ले जाती है ना. मगर जो less intelligent लोग हैं वो क्या बोलेंगे? बादल क्या है? The sky is cloudy and the air is dirty. इस तरह से बोला जाता है. मगर हवा के प्रभाव से जो बादल और डस्ट है वो लिए उड़ाए जाते हैं, ठीक है. मगर जो थोड़े कम बुद्धि वाले वो क्या बोलेंगे? आसमान क्लाउडी है, हवा गंदी है, ठीक है. सिमिलरली दे ऑल्सो इम्प्लांट मटेरियल बॉडली कंसेप्शन ऑन द स्पिरिट सेल्फ. तो इसलिए वो जो आत्मा है, जो हम हैं, हमें भी क्या बोलते हैं? मैटर से कंपेयर करते हैं कि हम भी ये शरीर है, मगर हम ये शरीर नहीं है. आई रीड द परपट. It is further confirmed herein that with our material eyes and senses we cannot see the Lord, who is all spirit. तो हम अपनी भौतिक दृष्टिकोण से भगवान को नहीं जान सकते या परसीव कर सकते, जो कि पूर्ण रूप से दिव्य हैं. We cannot even detect the spiritual spark which exists within the material body of the living being. Even हम लोग तो अपने अंदर ही जो spiritual spark है उसको भी नहीं जान पाते. तो what to say of seeing the supreme Lord? कोई ऐसा टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप कुछ बना है कि जिससे आप अपनी आत्मा को देख सकते हो? And what is the size of the soul? Yes, Asta, what is the size of the soul? Hare Krishna. Tip of the hair and 10,000 part of the tip of hair. हाँ, हमारा जो एक बाल है, ठीक, एक बाल अगर आप लोगे, इसका जो टिप होता है उसको अगर 10,000 भागों में आप विभाजित करो, that is the size of the soul. अब लो इतना छोटा, हम लोग तो माइक्रोस्कोप में अमीबा देख सकते हैं, अनियन पील्स देख सकते हैं, मगर सोल को नहीं देख सकते. तो ऐसा आप भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते, सोल को नहीं देख सकते. व्हाट यू आर सेइंग ऑफ सीइंग अ लॉर्ड हु इज स्पिरिचुअल, कैन नॉट. We look to the outward covering of the body or the subtle mind of the living being, but we cannot see the spiritual spark within the body. हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसको बाहर का शरीर देखते हैं, अंदर का स्पार्क हम नहीं देख सकते. So we have to accept the living being's presence by the presence of his gross body. तो अब जैसे किसी व्यक्ति के पास दिमाग है, कैसे हम परसीव कर सकते हैं? लाइक ऐसा एक कन्वर्सेशन था एक स्टूडेंट्स का और प्रोफेसर का. तो लाइक गोइंग ऑन, द प्रोफेसर वाज अ एथीस्ट, ठीक है, वो नास्तिक था, फिजिक्स का प्रोफेसर था. तो उसने बोला, हैज एनीबडी हैज सीन द लॉर्ड? सभी बोलते हैं नहीं, हमने नहीं देखा भाई भगवान को. अच्छा. हैज एनीबडी स्मेल्ड द गॉड? नो, वी हैव नेवर स्मेल्ड द गॉड. हैज एनीबडी टेस्टेड द गॉड? We have never tasted the God. So by this protocol of the science there is no God. तो ऐसा उन्होंने बोला कि इसके हिसाब से तो जिसको टेस्ट नहीं, स्मेल नहीं, देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, तो by the protocol of science there is no God, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है. अब एक दूसरा स्टूडेंट था क्लास में जो आस्तिक था, मतलब भगवान में विश्वास रखता था. वो खड़ा हो गया, बोला प्रोफेसर मुझे भी कुछ सवाल पूछने हैं, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो बोला यस, गो अहेड, व्हाट यू वांट टू प्रूव? He says, okay, let me ask few questions to the students. He said, okay. He said, has anybody seen the brain of the professor?
Everybody, no, we have not seen the brain of the professor. Has anybody touched the brain of the professor? We have never touched the brain of the professor. Has anybody smelled the brain of the professor? No. Has anybody tasted the brain of the professor? No. Then, according to the protocol of science, there is no brain in the professor. So he said in that way, आप किसी में दिमाग है नहीं, आप कैसे परसीव कर सकते हो? देख तो सकते नहीं हो, मगर उसके कार्यकलाप से आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति बुद्धिमान है या बुद्धिहीन है, आप समझ सकते हैं ना। तो मन को तो आप देख नहीं सकते हो, बुद्धि ब्रेन को देख नहीं सकते हो, तो हम क्या कर सकते हैं उसको, अगर उनका जो बुद्धि है कोई कार्य करता है तो हम समझ सकते हैं ये व्यक्ति बुद्धिजीवी है कि नहीं है। तो सिमिलरली हर चीज को जो ना देख पाए जरूरी नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब हवा है, हवा को आप देख सकते हो क्या? नहीं। वी कैन परसीव, वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ द एयर। हम लोग पत्तों को हिलता हुआ देखते हो, देयर इज अ एयर, हवा चल रही है बाहर, वी कैन से ना, वी कैन नॉट सी। तो दैट डजंट मीन कि वी कैन नॉट सी द लॉर्ड, सो वी कैन, ही इज नॉट देयर, नो, ही इज देयर बट वी कैन नॉट सी थ्रू आवर मटेरियल सेंसेस। ठीक है, so ऐसे बोला जाता है। So those who want to see the Lord with their present material eyes or with the material senses are advised to meditate on the genetic external feature called the विराट रूप। तो जो लोग भगवान को देखना चाहते हैं अपने इस भौतिक दृष्टिकोण से, तो विराट रूप पे मेडिटेट करें कि ये जो पहाड़ है भगवान की हड्डियां हैं, ठीक है, इस तरह से वो मेडिटेट कर सकते हैं। For instance, when a particular gentleman goes in his car, which can be seen very easily, we identify the car with the man within the car. When the president goes out in his particular car, we say, there is the president. For the time being, we identify the car with the president. ठीक है, अब जैसे कई बार आप गाड़ी चलाते हैं, आपके आगे रिक्शा वाला होगा, रिक्शा चला रहा होगा, आप उसको क्या, हे रिक्शा हट आगे से। रिक्शा बोला, भाई क्या भाई वो रिक्शा है क्या? नहीं ना, व्यक्ति है ना, व्यक्ति है, गाड़ी चला रहा है, वो रिक्शा चला रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, हे रिक्शा हटेगा क्या? तो ऐसे बोल देते हैं। तो उसी प्रकार से प्रेसिडेंट गाड़ी में जा रहा है तो हम कार को प्रेसिडेंट से कर देते हैं ऐसे में। सिमिलरली लेस इंटेलिजेंट मैन हु वांट टू सी गॉड इमीडिएटली विदाउट नेसेसरी क्वालिफिकेशन आर शोन फर्स्ट द जेनेटिक मटेरियल कॉस्मोस एज द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। सो ये जो मटेरियल कॉस्मोस है, तो इसी को बोल देते हैं ये भगवान का रूप है, इस तरह से उनको बताया जाता है। दो वो भगवान की एनर्जी है, ठीक है, भगवान का एनर्जी है, मगर स्वयं भगवान तो नहीं कहा जा सकता कि भगवान का रूप वैसा है, नो, मगर उनको समझाने के लिए बोल दिया जाता है कि ये भगवान है, तो इस तरह से उनको समझाया जाता है। सो ऑल्दो द लॉर्ड इज विद इन एंड विदाउट एवरीवेयर, ठीक है। द क्लाउड इन द स्काई एंड द ब्लू ऑफ द स्काई आर बेटर अप्रिशिएटेड इन दिस कनेक्शन। Although the bluish tint of the sky and the sky itself are different, we conceive of the color of the sky as blue, but that is a general conception of the layman only, ठीक है। सो ये जो ब्लूइश टिंट है आसमान का थोड़ा अलग है वैसे, तो वी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दैट वे। सो इसलिए जो न्यू फाइट हो गए उनको इस तरह से भगवान का रूप थोड़ा समझ पाए तो ऐसे बताया जाता है, क्योंकि भगवान के दिव्य रूप को तो देख नहीं पाएंगे ना, जब तक आप प्योर शुद्ध नहीं होंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट श्लोक। अतः परम यद अव्यक्तम अव्युधा गुण ब्रह्मितम अदृष्टा श्रुत वस्तुत्वात् सजीवो यत् पुनर्भवः। Beyond this gross conception of form is another subtle conception of form, which is without formal shape and is unseen, unheard and unmanifest. The living being, थोड़ा ज़्यादा दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है, वी कैन स्टॉप अगर नहीं समझ में आ रहा है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर स्टडिंग? यस, हरे कृष्णा। किसी को ऐसा तो नहीं कि ऊपर ऊपर से जा रहा है सब कुछ? हाँ, यू ऑल पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? यस पूजा माता जी। यस, मुझे समझ आ रही है। आ रही है ना, ऊपर ऊपर से तो नहीं ना जा रहा, पता चले सब ऊपर ऊपर से जा रहा, समझ ही नहीं आ रहा। नो आ रही है। Okay, if it is going heavy, let me know. We can stop and so that you can meditate on what we are studying. ठीक है? Okay, I'll read out this verse, then we'll be stopping. So क्या बोला है? The living being has his form beyond his subtlety, otherwise he could not have repeated birth. ठीक है? अब जो जीवात्मा है, वो मतलब इस शरीर के अलग है ना, तभी तो अलग अलग जन्म हो पाते हैं उसके। अब एक ही शरीर होगा तो कैसे, शरीर तो खत्म हो जाता है, तो क्या चीज है जो ट्रेवल करती है, कुछ तो है ना अनसीन। सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ। पर्पट में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद? As the gross cosmic manifestation is conceived as the genetic body of the Lord, so also there is a conception of a subtle form, which is simply realized without being seen, heard, or manifested. But in fact, all these gross or subtle conception of the body are in relation with the living beings. The living being has his spiritual
form beyond this gross material or subtle psychic existence. अब ये जो हमारा शरीर है, हमारी एक spiritual existence है, इस gross body, तो ये है ना gross body शरीर. इससे अलावा भी we have some existence that is spiritual. The gross body and psychic function cease to act as soon as the living being leaves the visible gross body. In fact, we say that the living being has gone away because he is unseen and unheard. अब आत्मा है, उसको तो ना तो किसी ने देखा ना सुना है. Even when the gross body is not acting, when the living being is in the sound sleep, we know that he is within the body by his breathing. ठीक है, अब कोई व्यक्ति सोया है तो हम कैसे जान सकते हैं जिंदा है? हम देख पाते हैं वो सांस ले रहा है ना? So the living beings passing away from the body does not mean that there is no existence of the living soul. It is there, otherwise how can he repeat his birth again and again? अब एक शरीर खत्म हो जाता है तो इसका मतलब क्या आत्मा खत्म होगी? नहीं. फिर नहीं, अगर आत्मा खत्म हो जाती तो फिर दोबारा दोबारा उसके अलग अलग जन्म कैसे होते है कि नहीं? यू ऑल बिलीव इन द रीइंकार्नेशन, इट इज मेंशन इन रीइंकार्नेशन. तो अलग अलग शरीर कैसे धारण करता वो? तो इसका मतलब सोल खत्म नहीं हो जाती मृत्यु के समय. इट रिमेन्स देयर. In Bhagavad Gita it said it never killed nor burned by the fire, not get wet by the water. तो तलवार से किसी वेपन से नहीं मारा जा सकता. It remains there. ठीक है. So I think I will stopping here. इस श्लोका को हम कल फिर से लेंगे. ठीक है. We are having some minutes, so I will open up for question and answer or any discussion. So anybody wants, so I can take up something. We have 8 minutes. So any of you having any questions or comments, so please go ahead, or if nothing, then I will end the class. Yes. किसी को कुछ पूछना है? Please go ahead. Yes, Asta, do you have anything? Hare Krishna. No, Mataji. It is clear to you? Yes. Okay. Anyone else? Yes, Akshay Prabhu. You have something? प्रीवियस वर्स में वहां पे आपने मेंशन किया था कि जो विराट फॉर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब Exist in the sense it is materially. तो it is not मतलब जो spiritual. स्पिरिचुअल फॉर्म होता है उसे, हाँ, तो जो स्पिरिचुअल फॉर्म है वो एक्चुअली मटेरियल फॉर्म से डिफरेंट होता है, मतलब आइडियली Yes. देयर इज नो बोथ मटेरियल, No, सो इट there इज is a डिफरेंट. There is difference. There is difference. अब जैसे I mean- हम अपना ही लगा लीजिए, ठीक है? Why to go anywhere else? You see yourself. This is material body, isn't it? ये जो शरीर है, ये किससे बनता है? Earth, water, fire, air, ether. Matter है ना ये? Yes or no, अक्षय प्रभु? This is matter? Matter है ना ये? हाँ या ना? हाँ, है ना, मैटर है. तो अब ये हम क्या सिर्फ ये शरीर है? नहीं ना. नहीं. हमारे I mean, अंदर मतलब एक जीवात्मा है, ठीक है? दैट वी, जो हमारी खुद की आइडेंटिटी है, दैट इज स्पिरिट. वो क्या है? स्पिरिचुअल है वो. अंडरस्टैंडिंग? सो वी आर नॉट दिस मटेरियल बॉडी, वी आर द स्पिरिचुअल बीइंग्स. बट द थिंग इज बिकॉज ऑफ आर बीइंग इन दिस मटेरियल, इस भौतिक जगत में है, तो भौतिक जगत में रहने की ये कंडीशन है कि आपको भौतिक शरीर लेना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे रह सकते हो. क्योंकि हर एक जगह का एक शरीर होता है ना. अब जैसे अगर आपको पानी में रहना हो तो आपको पानी में रहने जैसा शरीर होना चाहिए, जैसे मछली का होता है, ठीक है? वैसा रहेगा तो मछली में पानी में रह पाओगे, नहीं तो मर जाओगे, है ना? तो सिमिलरली बीइंग इन मटेरियल वर्ल्ड वी नीड टू हैव सम मटेरियल बॉडी. यहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि मैटर है ना, मटेरियल वर्ल्ड है. मैटर इसलिए बोला जाता है, मटेरियल मीन्स मैटर से जो बना होता है. स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सिर्फ स्पिरिट होती है, दैट इज द सोल्स, यू नो, इन अ प्योर फॉर्म. बट हियर वी आर द कंबाइंड नाउ, मैटर एंड स्पिरिट. ठीक है? जो मैटर है वो खत्म हो जाता है, जो स्पिरिट है वो खत्म नहीं होता, इट रिमेन्स देयर. ठीक है? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड द स्पिरिट. स्पिरिट इज इटर्नल बट मैटर इज टेम्पररी, इट विल फिनिश. अब मृत्यु होती, शरीर जल के राख हो जाता है, तो उसके साथ में क्या सोल भी खत्म होती है? नो. सोल क्या है? वो नेक्स्ट बॉडी आपके कर्मों के अनुसार उसको अलग जीवन मिल जाता है, अलग नेक्स्ट बॉडी वो ले लेगा. अगर तो आप भक्त हो तब तो आप गोलोक चले जाते हो, फिर दोबारा आप ये देह नहीं धारण करते भौतिक. अंडरस्टैंडिंग yes, Madhuri. क्लियर हुआ आपको? So can we say कि जैसे मटेरियल बॉडी होती है वैसे स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है, so there is material made up of 5 elements. So You spiritual can body is understand in that way. अब जैसे suppose what should I say now? I'm wearing the shawl right now. ठीक है? Like अभी इसके अंदर मैंने एक टी शर्ट पहन रखा है, ठीक है? I'm wearing some टी शर्ट, और अब ये जो टी शर्ट है इसका जो नाप है वो मेरे शरीर के अनुसार है ना? उसकी 2 बाजू बना रखी है, गला बना रखा है, isn't it? कि इस मेरी बॉडी में फिट हो रखी है. इसका शेप कैसा है? मेरी बॉडी जैसा है.
ठीक है। उसी तरीके से ये जो हमारा शरीर है, ये उस आत्मा के शरीर के हिसाब से होता है, मतलब इट्स ऑन द लाइक इट सेज द सोल का जो फॉर्म है दैट इज द टू हैंडेड फॉर्म। इट सेज वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बाइबल सेज वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। तो जो भगवान का स्वरूप है वो दो हाथों वाला ऐसे मनुष्य जैसा देह होता है, मतलब देह नहीं, स्वरूप ऐसा होता है उनका। तो इसलिए हमारा स्वरूप भी ऐसा ही है, दैट दिस बॉडी काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हरे कृष्णा। अक्षय समझ में आ रहा है आपको? यस माता जी, आ रहा है। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग, जो स्पिरिट है, जो हमारा ये जो शरीर है, जैसे हमारा ये बॉडी हम लोग लेते हैं, दिस इज अकॉर्डिंग टू द सोल, मींस द सोल का स्वरूप होता है दैट इज लाइक अकॉर्ड जैसे भगवान का स्वरूप है। एंड इट सेज द मैन इज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। तो जो भगवान का स्वरूप है वो दो हाथों वाला ऐसा मनुष्य जैसा, जैसे हमारा देखते हैं हम लोग, ऐसा देह होता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आवर बॉडी इज आल्सो इन दैट शेप, अंडरस्टैंडिंग। अब आप बोलोगे Yes, ऐसे तो सुअर बिल्ली का भी मिलता है, वैसा भी होता है क्या? सो अकॉर्डिंग टू दैट द डिफरेंट स्पीशीज वन गेट द डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। सो दैट्स देयर। एनीथिंग एल्स? इज इट क्लियर और स्टिल सम कंफ्यूजन इज देयर? I have, I mean, it is not doubt. I mean, I will need more time to understand this thing, because in Guru Granth Sahib, they say it is Nirankar Swarup. So that is Nirankar in the sense that it is non-material, or it has altogether have no form. That Nirankar means there is no form. वो जो निरंकार कहते हैं that is it means there is no form of Lord. मगर भगवान का स्वरूप है ना, it's an offense to Lord to say that he has no form. No form means he has no eyes, no ears, no nose, no hands, no legs. तो भाई हमारे भगवान कोई गूंगे बह रहे हैं? Tell me Akshay. हाँ? I don't agree with that philosophy also, but Okay, let me Guru give you Nanak one was- more thing. Okay, you have certain form. You have na Yes. eyes, nose, eye, is like you have the form, isn't it? So because your parents, you are coming from your parents, huh? You are born from your parents, ना? तो आपके माता पिता का रूप है, तभी आपका भी रूप है। किसी नॉन फॉर्म से फॉर्म आ सकता है क्या? जिसका खुद का कोई आकार नहीं है, उससे कुछ आकार आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। नहीं आ सकता ना। आपका रूप है क्योंकि आपके माता पिता का है। पीछे पीछे जाओगे, so you will reach to the supreme person. So that means he has the form. That's why we are also having the form, because we are part and parcel of Lord. उन्हीं के अंश है ना हम लोग, तो उनका रूप नहीं होगा तो फिर हमारा रूप कैसे हो सकता है? बताओ। वो बात तो Understanding? बिल्कुल सही है। आ रहा है समझ में? भगवान का निरंकार इस सेंस में कहा जाता है कि उनका भौतिक नहीं है। भौतिक मीन्स मटेरियल बॉडी नहीं होता उनका। इसलिए जैसे हमारी मैटर और स्पिरिट अलग अलग है ना, भगवान का सिर्फ स्पिरिट ही है, मैटर नहीं होता। अगर मैटर होगा तो इसका मतलब वो भी गुणों के अधीन है, बट ही इज नॉट अंडर द मोड्स, ही इज अबव द मोड्स। सो उस सेंस में ही इज ट्रांसेंडेंटल, हिज बॉडी इज ट्रांसेंडेंटल। इट्स नॉट दैट स्पिरिट एंड द बॉडी इज डिफरेंट, ही इज हैविंग ओनली स्पिरिट, नो मटेरियल बॉडी। अंडरस्टैंडिंग? Yes, Akshay. Is it clear to you now? Yes, Mataji, it is clear. Okay. Still some confusion you can ask. Mm, Because we actually, should inquire there- till our intelligence gets satisfied. No, actually, I don't have any conception of no form. But in some scriptures, like Sant Kabir says that it is all pervading. Just it hold has, on 1 second. Please, devotees, please come again क्योंकि session खत्म होने वाला है. I want to answer your questions. Please come again. Please join again. दोबारा से join कीजिए.